السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہے 8 جون 2020 اور آج قطر کی سپریم کمیٹی فار کرائسس مینجمنٹ نے ایک اہم فیصلے کا یا منصوبے کا اعلان کیا ہے، اور یہ جو منصوبہ ہے اس کا انتظار ہم سب کو بہت دنوں سے تھا، اور وہ یہ کہ جو کووڈ-19 یا کورونا وائرس کی وجہ سے قطر میں جو پابندیاں ہیں مختلف طرح کی جو لگائی گئی ہیں، ان کو کب کم کیا جائے گا اور کب ان پابندیوں کو ختم کیا جائے گا، یہ سوال تھا اور یہ ہم سب کے ذہن میں تھا۔ اور آپ بھی ہمیشہ پوچھتے تھے کہ مسجدیں کب کھلیں گی، فلائٹس کب شروع ہوں گی، دکانیں کب کھلیں گی، وغیرہ وغیرہ، یہ تمام سوالات تھے۔ تو آج ان کا جواب میں آپ کو انشاءاللہ دوں گا۔ اس پریس کانفرنس میں ایک لمبے منصوبے کا اعلان کیا گیا ہے جو کہ 15 جون سے شروع ہو کر کے 1 سپٹمبر تک رہے گا، اور اس دوران ضروری ہے کہ تمام لوگ جو پریکاشنری میجرز ہیں، جو احتیاطی تدابیر ہیں، ان کی پابندی کریں، جن میں سب سے اہم سوشل ڈسٹینسنگ، ماسک کا استعمال اور محفوظ فاصلے پر رہنا، کام کے دوران بھی اور عام جگہوں پر بھی یہ ہیں۔ ان کا خیال کرتے ہوئے اگر ہم چلیں گے تو پھر پابندیاں جو ختم کی جا رہی ہیں اس کے لیے جو مختلف مرحلے ہیں وہ بڑھتے چلے جائیں گے۔ تو میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا کہ کس تاریخ سے کیا کیا کھلے گا اور کون سی پابندیاں اٹھیں گی۔ میں ہوں عبید طاہر اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں میرے پیج پر، جو کہ نیوز آف قطر ود عبید طاہر فیس بک کا پیج ہے۔ تو ویڈیو کو شیئر کیجئے تاکہ معلومات سب تک پہنچیں، اور اس پیج کو لائک اینڈ فالو کیجئے تاکہ آپ کو اپڈیٹس ہمیشہ ملتی رہیں۔ نیوز آف قطر ود عبید طاہر۔ تو جو منصوبہ گورنمنٹ نے تیار کیا ہے، یہ منصوبہ پابندیوں کو ختم کرنے کا 4 مختلف مرحلوں پر ہے، اور ان 4 مرحلوں میں پہلا مرحلہ انشاءاللہ اگلے پیر یا اگلے منڈے سے شروع ہو رہا ہے، یعنی کہ 15 جون سے شروع ہو رہا ہے۔ 15 جون کو پابندیاں ختم کرنے کا پہلا مرحلہ شروع ہوگا، جو کہ 15 دنوں کا ہوگا۔ اس کے بعد دوسرا مرحلہ 1 جولائی سے شروع ہوگا۔ تیسرا مرحلہ اس کا 3rd راؤنڈ 1 اگست سے شروع ہوگا، اور چوتھا اور آخری راؤنڈ جس میں کہ تمام پابندیاں اٹھا لی جائیں گی وہ ہوگا 1 سپٹمبر سے۔ اور اب میں اس کی آپ کو تفصیل بتاؤں گا کہ 15 جون سے کیا اور کتنا کھولا جائے گا، کون کون سی ایکٹیویٹیز شروع ہوں گی اور اس میں کتنی اجازت ہوگی۔ تو سب سے پہلے تو خوشخبری یہ ہے کہ 15 جون یعنی اگلے پیر سے مسجدیں کھولی جا رہی ہیں قطر میں، لیکن تمام مسجدیں نہیں، کچھ مسجدیں کھولی جا رہی ہیں عام نمازوں کے لیے، عام نمازیوں کے لیے، لیکن جمعہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ عام نمازیں پڑھی جائیں گی، تمام مسجدیں نہیں کھلیں گی، لیکن مختلف علاقوں میں مختلف مسجدیں کھول دی جائیں گی منڈے 15 جون سے، اور اس میں آپ نماز پڑھنے جائیں گے تو گھر سے اپنی جانماز لے کر کے جائیں، گھر سے وضو کر کے جائیں، قرآن اگر پڑھنا ہے تو اپنا قرآن لے کر کے جائیں یا موبائل سے قرآن پڑھیں۔ مسجد میں نشانات لگا دیے گئے ہیں، ان کے مطابق ہی اپنا مصلی بچھا کر کے وہاں پر نماز پڑھیں۔ جتنی دیر بھی آپ مسجد میں رہیں گے آپ کو فیس ماسک لگا کے رکھنا ہے، گلوز لگا کے رکھنے ہیں، اور وہاں پر جو سیکیورٹی کے جو افراد ہوں گے ان کے ساتھ تعاون کرنا ہے، بھیڑ نہیں لگانی ہے، ٹھیک ہے؟ ان تمام شرطوں کے ساتھ آپ مسجدوں میں جا کر کے اگلے پیر سے نماز پڑھ سکتے ہیں اگر آپ کے علاقے کی مسجد کھلی ہے تو، اور جیسے کہ میں نے کہا کہ تمام مسجدیں ایک ساتھ نہیں کھلیں گی۔ تو 15 جون سے جو مرحلہ شروع ہو رہا ہے اس میں کچھ مسجدیں کھلیں گی، اور اس میں ان شرطوں کے ساتھ آپ وہاں پر نماز پڑھ سکیں گے۔ اس کے علاوہ جن لوگوں کے پاس ذاتی اپنی کشتیاں ہیں جو لوگ، وہ اس کا استعمال کر سکتے ہیں، اور اگر کوئی شخص ان 15 دنوں میں 15 جون سے شروع ہونے والے پہلے مرحلے میں دوحہ سے باہر کہیں جاتا ہے تو واپس آنے پر اس کو اپنے خرچے پر 2 ہفتے کے لیے کسی ہوٹل میں جو بتایا جائے گا
उसमें क्वारंटीन में उसको रहना पड़ेगा। अगर कोई 15 जून से 1 जुलाई के अंदर, मतलब इस दौरान अगर कोई जाता है तो ठीक है। ये ट्रांसपोर्टेशन की बात हो गई। उसके अलावा पार्क्स वगैरह जो हैं ये भी 15 जून से खुलेंगे, लेकिन तमाम पार्क नहीं खुलेंगे, चंद एक पार्क खुलेंगे और उसमें भी पाबंदी होगी, बच्चों की इजाज़त उसमें नहीं होगी। और जो प्रोफेशनल जो ट्रेनिंग के जो सालून हैं या सेंटर्स हैं उनको भी खोला जाएगा, लेकिन सिर्फ 1 से लेकर 5 अशख़ास तक की उसमें इजाज़त होगी। और जो प्राइवेट क्लिनिक्स हैं उनकी बात करें तो वो भी खुल रहे हैं 15 से, लेकिन उनकी जो एक तो वहाँ पे भी फ़िलहाल इमरजेंसी सर्विसेज तो वो दे रहे हैं, उसके साथ 40% जो उनकी कैपेसिटी है, जितनी भी कैपेसिटी उनकी है जिस प्राइवेट क्लिनिक की, तो उसमें से सिर्फ 40% के बराबर वो 15 जून से पहले मरहले में वो अपनी सर्विसेज दे सकेंगे। उसके बाद जो शॉपिंग मॉल्स हैं उनमें कुछ दुकानें, कुछ शोरूम्स खुलेंगे, लेकिन शॉपिंग मॉल के लिए ज़रूरी है कि पहले मरहले में सिर्फ 30% जितनी उसकी गुंजाइश है, जितने आदमियों की उसमें, मतलब अगर 100 आदमियों की गुंजाइश है तो सिर्फ 30 आदमियों की इजाज़त होगी। और जो दुकानें खुलेंगी वो एक से दूसरी दुकान के दरमियान कम से कम 300 मीटर का फासला होगा। तो ये हुआ पहला मरहला, ठीक है। अब आते हैं दूसरे मरहले की जानिब। दूसरा मरहला शुरू होगा पाबंदियां उठाने का 1 जुलाई से, ठीक है, 1 जुलाई से। इसमें जो इजाज़त, जैसे 10 आदमी कहीं पर जमा होकर के कोई मीटिंग है, कोई ऐसा कोई मसला है, तो अब वहाँ पर 10 आदमी ज़्यादा से ज़्यादा जमा हो सकेंगे। मज़ीद कुछ और मस्जिदें खोली जाएंगी 1 जुलाई से, ठीक है। 15 से कुछ खोली जाएंगी, 15 जून से, अगले पीर से। उसके बाद 1 जुलाई से मज़ीद कुछ मस्जिदें और खोली जाएंगी। और आगे बढ़ें तो वो बात याद रखिएगा कि अगर कोई दोहा से बाहर कहीं जाता है तो वापसी में 14 दिन तक अपने ख़र्चे पर होटल में क्वारंटीन में रहना पड़ेगा। किराए पर आप दूसरे मरहले से कश्तियाँ लेकर के आप अगर समंदर में जाना चाहते हैं तो 10 आदमी ज़्यादा से ज़्यादा उसमें भी जा सकेंगे। 1 जुलाई से तमाम पार्क, तमाम बीचेस और कॉर्निश खोल दिया जाएगा 1 जुलाई से, ठीक है। उसके अलावा जो ओपन प्लेसेस हैं वहाँ पे ट्रेनिंग के लिए या प्रोफेशनल ट्रेनिंग के लिए 10-10 ग्रुप के बंदों को इजाज़त होगी। और जहाँ तक प्राइवेट क्लिनिक्स की बात है तो उनको पहले मरहले में 40% कैपेसिटी के साथ इजाज़त थी, दूसरे मरहले में 60% के साथ उनको इजाज़त होगी। सेकेंड राउंड में 1 जुलाई से जितने भी शॉपिंग मॉल्स हैं वो खोल दिए जाएंगे, लेकिन उनकी टाइमिंग्स होगी। जो बाज़ार हैं, होलसेल में जो बाज़ार बेचते हैं चीज़ें, वो खोल दिए जाएंगे, उनकी भी टाइमिंग होगी और एक लिमिटेड कैपेसिटी के साथ होंगे। फिर जो होटल्स यानी कि रेस्टोरेंट्स हैं उनको भी खोल दिया जाएगा, लेकिन जितनी उसकी गुंजाइश है उसमें बहुत कम रखा जाएगा। साथ ही साथ म्यूज़ियम्स और लाइब्रेरी वगैरह भी खोल दी जाएगी, लेकिन कुछ टाइम के लिए। सेकंड राउंड में जो लोग अभी तक कंपनियों में, वजारतों में, इदारों में 20% मुलाजमीन काम कर रहे हैं, 1 जुलाई से सेकंड राउंड में ये तादाद बढ़ा दी जाएगी और 50% लोग जाकर के काम कर सकेंगे, ठीक है। और जो लोग सवालात कर रहे हैं उनसे मैं कहूँगा कि पहले मेरी बातें सुन लें, उसके बाद अगर कोई सवाल होगा तो वो बाद में होगा, लेकिन मैं तफसील से बता रहा हूँ तो इस वक्त मेरी बातें आप सुनिए। तीसरा राउंड जो पाबंदियां हटाने का है वो शुरू होगा 1 अगस्त से। 1 अगस्त में जो मज़ीद पाबंदियों को नरम किया जाएगा और कहीं पर जमा होने में, किसी प्रोग्राम में जिसमें कि या मीटिंग में ज़्यादा से ज़्यादा 40 आदमियों की इजाज़त होगी। तीसरे मरहले में यानी कि 1 अगस्त से मस्जिदें मज़ीद खोली जाएंगी और मुल्क में 54 मस्जिदों में जुमे की नमाज की इजाज़त दे दी जाएगी। ये होगा कब? तीसरे राउंड में, जो कि 1 अगस्त से होगा। यानी कि 1 अगस्त तक जुमे की इजाज़त नहीं होगी, सिर्फ आम नमाजें पढ़ी जाएंगी और वो लिमिटेड मसाजिद में होंगी। उसके अलावा
1 अगस्त से 1 अगस्त से फ्लाइट शुरू हो जाएगी। जो लोग बार बार पूछ रहे हैं, 1 अगस्त से फ्लाइट्स शुरू हो जाएंगी, लेकिन उन मुल्कों से होंगी कि जहां पर के कोविड-19 कंट्रोल में आ रहा है, आ गया है, जहां पर के जो रेट है बीमारी का वो कम हो गया है, ठीक है। और 1 अगस्त से ही ड्राइविंग स्कूल भी खुलेंगे। जो लोग बार बार पूछ रहे हैं, और मुझे अजीब से ये लोग लगते हैं कि जैसे ही वो आते हैं लाइव वीडियो पे तो फ़ौरन अपना सवाल लिखते हैं, ये नहीं सोचते कि मैं क्या कह रहा हूँ और ये नहीं सुनते कि मैं क्या बता रहा हूँ। तो आप पहले मेरी बात सुन लें। फ़्लाइट्स भी और ड्राइविंग स्कूल्स भी 1 अगस्त से खुलेंगे, लेकिन हर मुल्क से फ़्लाइट नहीं आएगी, ये जहन में रखिएगा। अब ये मत पूछिएगा कि कहाँ से, ये अगले दिनों में आपको मालूम हो जाएगा कि किन किन मुल्कों से इजाज़त होगी फ़्लाइट्स के आने की। 1 अगस्त से ये सिलसिला शुरू होगा, और वो लोग जिनके पास कतर का इकामा मौजूद है, जो लोग छुट्टी पे गए थे, बाहर थे, वो लोग वापस आ सकेंगे 1 अगस्त के बाद से। और इसकी जो डिटेल्स हैं कि कैसे आपको बुकिंग करनी है, कौन कौन से मुल्क से फ़्लाइट आएंगी, ये तमाम की तमाम चीज़ें इंशाल्लाह अगले दिनों में वाज़े हो जाएंगी। आप ख़बरें देखते रहिएगा। ड्राइविंग स्कूल भी 1 अगस्त से खुलेंगे। उसके अलावा जो खेलने की जो जगह हैं वो तमाम भी, जो ट्रेनिंग्स वगैरह जो करते हैं, टीमों की ट्रेनिंग, जैसे कि जो प्रोफेशनल ट्रेनिंग है, उसमें 40 आदमी शरीक हो सकेंगे। जो बेबी सिटर्स हैं, किंडरगार्टन्स हैं, वो भी 1 अगस्त से खुलेंगे। उसके अलावा शॉपिंग मॉल्स और तमाम जो बाज़ार हैं वो भी 1 अगस्त से खुल जाएंगे, लेकिन उसकी टाइमिंग होगी कि कितने बजे से कितने बजे तक, और वो उन दिनों में बता दिया जाएगा। जो होटल्स रेस्टोरेंट्स हैं उनकी तादाद और बढ़ा दी जाएगी, और उनकी जो कैपेसिटी है उसको भी बढ़ा दिया जाएगा। जो हेल्थ क्लब्स हैं, जिम हैं, स्विमिंग जिम्स वगैरह हैं, स्विमिंग पूल्स हैं, बार्बर शॉप है, और उसके अलावा ब्यूटी पार्लर्स हैं, ये तमाम के तमाम 1 अगस्त से खुलेंगे। ठीक है, आपके तमाम सवालों का जवाब मिल गया होगा। और जहाँ तक बात है मुलाजिमीन की, तो उनकी तादाद 50% से बढ़ा करके तीसरे मरहले में 80% हो जाएगी। सही है, तो तीसरा मरहला 1 अगस्त से है, जिसमें कि अक्सर चीज़ें 1 अगस्त से खुल जाएंगी, और फ्लाइट्स भी आना शुरू हो जाएंगी, ड्राइविंग स्कूल भी खुल जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। उसके बाद जो चौथा मरहला है वो है 1 सितंबर से, और उसमें तमाम जो गैदरिंग्स हैं उनकी इजाज़त होगी, जैसे कि शादी वगैरह, तमाम मस्जिदें खुल जाएंगी, जुमा हर जगह शुरू हो जाएगा, कॉन्फ्रेंसेस शुरू हो जाएंगी, एग्जीबिशंस शुरू हो जाएंगी, तमाम जो रिक्रिएशन सेंटर हैं, जो खेलने कूदने की जगह हैं, जो फिटनेस सेंटर्स हैं, वो तमाम के तमाम खुल जाएंगे। और मेट्रो और बसेस भी जा कर के चौथे मरहले में शुरू होंगी 1 सितंबर से, लेकिन उसमें भी रिस्ट्रिक्शंस होंगी कि कितने लोग उसमें कर सकते हैं। और 1 सितंबर से मज़ीद जो फ़्लाइट्स जिन मुल्कों से नहीं आ रही हैं वहाँ से भी आना शुरू हो जाएंगी, लेकिन उसके लिए गाइडलाइंस होंगी हेल्थ मिनिस्ट्री की, उनके ऊपर अमल किया जाएगा। और फिर जो कैंपिंग वगैरह है और दीगर जो इवेंट्स हैं वो तमाम की तमाम शुरू हो जाएंगी 100% के साथ, हर 100% कैपेसिटी के साथ तमाम जो मेडिकल क्लिनिक्स हैं वो काम करने लग जाएंगे। और नया तालीमी साल, नया साल भी 1 सितंबर से शुरू हो जाएगा स्कूलों का। और उसके अलावा तमाम शॉपिंग मॉल्स भी खुल जाएंगे, तमाम म्यूज़ियम्स भी, तमाम लाइब्रेरीज़ भी, तमाम रेस्टोरेंट्स भी, सब के सब ये चीज़ें 1 सितंबर से होंगी। और 1 सितंबर से ही तमाम के तमाम लोग अपने कामों पे 100% लौट आएंगे। अब यहाँ पर ये बात याद रखिएगा कि इन चारों मरहलों में 15 जून से लेकर के आखिरी मरहले तक, हर मरहले में जो सेफ्टी के जो मेजर्स बताए गए हैं हेल्थ मिनिस्ट्री की जानिब से, उसकी पाबंदी करना लाजमी होगा। महफूज फासले पे रहना है, सोशल डिस्टेंसिंग को रखना है, जो फेस मास्क है वो लगा के रखना है, और किसी भी तरीके से वायरस को इजाज़त नहीं देनी है कि वो पलट के दोबारा हमला करे। इस वक्त आपकी पाबंदी की वजह से
جو وائرس ہے وہ قطر میں اس کی پھیلاؤ کی رفتار 1% سے بھی کم ہو گئی ہے الحمدللہ. اور اگر ہم اسی طریقے سے سیفٹی جو میجرز ہیں ان کے اوپر عمل پیرا رہیں گے تو یہ پابندیاں بھی ختم ہوتی چلی جائیں گی اور یہ وائرس دوبارہ نہیں آئے گا. لیکن اگر ہم نے ان کی پابندی نہیں کی تو یہ جو پلان جو پورا میں نے بتایا ہے یہ تبدیل بھی ہو سکتا ہے. گورنمنٹ ایویلویٹ کرے گی ہر کچھ دنوں میں، اور اگر یہ نظر آیا کہ لوگ پابندی نہیں کر رہے ہیں اور وائرس دوبارہ سے زور پکڑ رہا ہے تو بھائی پھر یہ دوبارہ یہ پابندیاں ساری کی ساری لگا دی جائیں گی. لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ان نرمیوں کا غلط فائدہ نہ اٹھائیں. جو سیفٹی اور جو پریکاشنری میجرز ہیں، احتیاطی تدابیر ہیں، ان کی مکمل پابندی کریں. اور جو لوگ سوال کر رہے ہیں اب آئے ہیں، انہوں نے اب جوائن کیا ہے، ان سے میں کہوں گا کہ ویڈیو شروع سے دیکھیں. آپ کے تمام سوالوں کا جواب اس ویڈیو میں موجود ہے کہ کون سی دکان کون سی چیز کب سے کھلے گی، تمام سب کچھ موجود ہے اس ویڈیو میں. اس ویڈیو کو آپ شیئر کیجئے، لوگوں تک پہنچائیے اور دعا کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے. عبید طاہر آپ سے اجازت چاہتا ہے. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. دعا میں یاد رکھیے گا. ویڈیو شیئر کرنا نہ بھولیے. اللہ حافظ.